For class 6, a gift of chappals. एक उपहार चप्पल का. Smiling Rukmani threw open the door. Ravi and Meena rushed out, and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. मुस्कुराते हुए रुक्मणी ने दरवाजा खोला. रवि और मीना दौड़कर बाहर आए और रवि ने मृदु को घर में खींच लिया और उसे कहा कि रुको, मुझे अपनी चप्पल उतारने दो. मृदु ने उसका विरोध किया. उसने कहा कि बड़े काले लोगों की यानी कि बड़े लोगों की एक जोड़ी की जो चप्पल है वो वहाँ उसके पास में है. वो किसके थे ये नहीं पता, मगर वो थे ग्रे कलर में. वो पूरे की पूरे धूल से यानी कि मिट्टी से भरे हुए थे. हर एक मतलब जैसे उस चप्पल के ऊपर में पैर के निशान भी बने हुए दिखाई दे रहे थे. दो बड़े बड़े पैरों की उंगलियां भी उसमें एकदम साफ साफ दिखाई दे रही थी. वो दोनों अंगूठे जो अंगूठे बड़े और एकदम टेढ़े मेढ़े से उसके ऊपर में उसके निशान बने हुए दिखाई दे रहे थे. मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर about whose slippers they were, because Ravi dragged her to the backward behind a thick bitter berry bush. There inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shelf. मृदु के पास में ये सोचने के लिए उसके पास में ज़्यादा समय नहीं था कि ये किसकी चप्पलें हैं, क्योंकि रवि ने उसको पीछे की तरफ में उसको खींचा था. तो पीछे में एक बहुत ही मोटी जो बेर की झाड़ी थी वहाँ उसके और उसने वहाँ पे देखा था कि एक फुटबॉल के अंदर ऐसे लगे जैसे धारीदार सा फुटबॉल था जो पूरी मिट्टी से भरा हुआ था और एक छोटी सा बिल्ली का बच्चा उसके पास में था जो कि नारियल की जो आधे टुकड़े नारियल का जो खोल जो होता है उसके अंदर में कि वो उसको देख रहा था कि उसको उसको दूध मिले ताकि वो उसको पी सके, जिस बिल्ली को उसने आज सुबह ही अपने घर के दरवाजे के पास में पाया था. We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor thing. वो म्याऊं म्याऊं करके कर रही थी दूध के लिए. It's a secret. Amma says Pati will leave for our Pandu Mama's house if she knows we have a cat. People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry, I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted a tumbler back. Pati, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. मीना ने मृदु को बताया कि उसे वो बिल्ली सुबह के समय घर के बाहर मिली थी, पर उन लोगों को ये बात गुप्त रहस्य में रखनी होगी, नहीं तो दादी घर से तुरंत चली जाएगी. रवि इस बात से दुखी था कि बड़े लोग जानवरों पर दया दिखाने के लिए सीख देते हैं, पर जब ऐसा करते हैं तो वो बड़े लोग चिल्लाने लग जाते हैं और कहने लगता है कि इन गंदे जानवरों को घर में मत लाया करो. तभी जैसे वो ही दूध की ग्लास लेके बाहर जाने लगता है तो उसकी दादी को शक हो जाता है और वो उसको कहता है कि तुम दूध कहाँ लेके जा रहे हो. तो वो कहता है कि दादी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसीलिए मैं अपने लिए ही लेके जा रहा हूँ, मुझे पीना है. ऐसे कहकर वो वहाँ से दौड़ के चला जाता है, मगर उसके सामने दादी के सामने भी उसको वो दूध पीना पड़ता है, नहीं तो दादी को शक हो जाता. Milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got up really suspicious. Now we have to think of some other way to feed Mahendran. Mahendran, the little cat's name is Mahendran. Middo was impressed. It was a real name, not just a cute
kitty cat name. Actually, his full name is Mahendran Varman Pullai, MP Pune for short if you like. He is a fine breed of cat. Just look at his fur, like a lion's mane. And you know what the emblem of the ancient kings was, don't you? He looked expectantly at Mridu. Mridu giggled. Think I am joking? Well, just wait. I will show sometime. It's clear you know a thing about history. Haven't been to Mahabalipuram? Have you? He said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his tathas, etc. Fact is, Mahendran here is descended from that very same ancient time, a close relative, scientifically speaking, of none other than lion, the Pallava lion, emblem of the Pallava dynasty. Ravi went on walking around the bush, weaving a twig tap and down, his eyes sparkling. This cat is the descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, the worshipped cats in ancient Egypt. तो इस तरह से वो दूध लेके आता है, दूध लेके आके और उस नारियल के कटोरे में डाल देता है और वापस जाके उस बर्तन को धो के वहाँ पे रख देता है ताकि किसी को कोई चीज़ की शक ना हो। और वो ये सोचते हैं कि अब हम इस महेंद्रन को दूसरे तरीके से कैसे इसको खाना ना खिलाएंगे पिलाएंगे। तो वो कहता है कि महेंद्रन, पहले कि हाँ ये ना इस छोटी सी बिल्ली का जो नाम है उसका महेंद्रन रखा है। तो मृदु बहुत ही खुश होती है। तो वो ये भी कहता है कि ये एक सच्चा नाम है, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे वैसे कोई नाम रखा है। एक्चुअली क्या है कि इस महेंद्रन का नाम है महेंद्रन वर्मन पल्लव पोन्नई, MP पोन्नई, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम लिया गया है। देखो ये एक साधारण बिल्ली नहीं है, ये शेर के वंशज की है, जो कि इसके बाल देखने से भी आपको पता चलता है। एंशिएंट प्राचीन पल्लवा के जो राजा थे उनके ही बारे में तुमने जाना होगा, ये उनका एम्ब्लम है यानी कि प्रतीक है। तो मृदु कहते हैं कि हाँ सही से बता, मुझे समझ में नहीं आया। तो लेकिन सही में मैं कोई जोक नहीं कर रहा हूँ, तुम क्या सोच रही मैं मजाक कर रहा हूँ कि नहीं। तो वो ये बताता है अपने उसके बारे में कि जब हम स्कूल की तरफ से जब हम महाबलीपुरम की यात्रा पर गए थे तो वहाँ पे हमने शेर की एक मूर्ति देखी थी, शेर की एक मूर्ति देखी थी और उससे पूरा ये यकीन भी था कि यही वो बिल्ली है जो पूर्वजों से आई है। उसको बड़ा ही अच्छा लगा और वो ये भी कहता है कि महाबलीपुरम में ऋषि बिल्ली की वंशज है। उसने ये भी बताया था कि प्राचीन काल में मिस्र के जो लोग हैं वो बिल्ली की पूजा करते थे और उसे विश्वास है कि ये वही बिल्ली है जो ये बिल्ली का जो वंशज का है, देवी जो बास्टेट की ही वंशज ये बिल्ली है। इस तरह से वो उसके बारे में पूरा बताता है। जैसे कि हाउ ही लुक एट द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स, व्हाट डज दे हैव टू डू विथ एनीथिंग, मृदु डिमांडेड, Oh, I am telling you, this cat is descended from the Egyptian cat dog. इस तरह से वो बताता है कि ये जो बिल्लियों की देवी की जो वंशज थे बैसेट, ये उसी की ही वंशज से ये बिल्ली यहाँ पे आई है जिसको कहते थे कि ऋषि बिल्ली। तो वेल डन, वन ऑफ द एंसेंट दैट गॉड डॉग्स इज stored in one of the Pallava ships and is descendant of the Mahabalipuram Rishi cat. Ravi flourished his track at Mahendran. MP Ponnai here, who he shrieked, very pleased with himself. Mahendran looked up alarmed. He had just been sharpening his claws and on the edge of the coconut shell. तो इतने में क्या होता है कि जैसे उन लोगों को एक आवाज़ सुनाई देती है क्रिच की, तो वो ये लोग डर जाते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो बिल्ली भी डर जाती है। तो बिल्ली अपने आप को बचाव करने के लिए ऊपर की तरफ में दौड़ती है, जहाँ पे वो पाई जाती है कि वहाँ पे सूखी लाल मिर्च सुखाई गई है, जो उसके ऊपर से वो दौड़ती है। तो वो अपने आप को छुपाने के लिए वो अपना जो कुछ मिर्चें अपने के ऊपर में डाल लेते हैं। इस तरह से वो डर जाते हैं। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु।
That's Lali learning to play the violin, grunted रवि। तो जब ये बता रवि कहता है कि ये लाली की आवाज़ है जो कि वो एक वायलिन सीख रही है। शी विल नेवर लर्न ए थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोस ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन गया था। उसके मास्टर जी उसको बजाते हुए सिखा रहे हैं, मगर मास्टर जी कुछ और करते हैं और वो उसकी अलग ट्रैक में जा रही है, यानी कि दोनों का बहुत ही डिफरेंस में था। Mridu crept up the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and brushing her elbows, jutting out, and her eyes glazed with concentration. In front of her, with the most of his back to the window, was the bony figure of the music master. He had mostly black head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck, and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down with the stem of the violin. A large foot stuck out of from beneath his gold-bordered vest edge, and he was beating time on the floor with a skinny big toe. He played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. तो रवि ने उसे बताया है कि लाली वायलिन बजाना सीख रही है और ये आवाज़ वहीं से आ रही है। मृदु ने खिड़की से झांक कर देखता है तो देखता है कि लाली वायलिन को अजीब तरीके से पकड़ रखा है और उसका संगीत जो है शिक्षक के संगीत से विभिन्न तरीके से जा रही है और वो अपने शिक्षक के सामने बैठी हुई है कुछ दूरी पर, जिनकी पीठ खिड़की की ओर दिखाई दे रही है। शिक्षक जो कि सिर पर कुछ काले बाल बचे हुए थे जिनमें तेल लगा हुआ था और कानों तक उसके लंबे लंबे बाल थे और गले में सोने का माला भी पहन रखी थी और हाथों और अंगुलियों में अंगूठी भी पहनी हुई थी। उनका जो पाँव का अंगूठा था वो बड़ा और जमीन के ऊपर में धीरे धीरे से वो पटक रहे थे। शिक्षक वायलिन पर बड़ी आसानी से धुन बजा रहे थे, जबकि लाली उनकी धुन बजाने से यानी कि प्रयत्न कर रही थी, वो ढंग से बजा नहीं पा रही थी। शिक्षक के गाने मधुरता से भरे हुए थे और लाली हर बार धुन को सही नहीं बजा पा रही थी। What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the visible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. As Ravi said, Mridu started at the hub, ringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. Squawk! There was Lali's darling again. Amma came a while from the gate. Amma, oh! Ravi sent that beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting. तो लाली का सही ढंग से बजा नहीं पा रही थी, तो जगह बच्चे जो होते हैं वो खिड़की से झाँक कर उसके मजे कर रहे थे। तभी माँ ने रवि को बुलाया और कहा कि भिखारी को भगाने के लिए। वो अब तंग आ गई थी कि भिखारी हर सप्ताह उनके घर पर आता है और इसी जगह पे वो चाहती है कि भिखारी अब कोई और घर खोज ले। He has been coming up every day for the past week, and it's time he found another house to beg from, Pati explained to Tapi. Mridu and Meena followed Ravi out. The beggar was already in the garden, making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk. Apatni prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to beg from. The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice. Amma, oh, said his wife, might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with battle chewing. Ravi, tell him there is nothing left in the kitchen, called Rukmani. And he is not to come again, tell him that. She sounded feet up. Ravi didn't have to repeat it all. The beggar
What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree the beggar sat up and sighed. I will go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot. The tar was melted on the road. My feet are already blistered. माँ ने रवि को बुलाकर जब कहा कि भिखारी को भगाने के लिए, तो वो तंग आ गई, क्योंकि वो भिखारी हर सप्ताह से लेके अभी तक वो उसी के घर पे आता है और इसी वजह से उसको पसंद नहीं है कि वो बार बार उसके घर पे आए। और वो ये कहती है कि उससे कह दो कि कोई और दूसरा घर देख ले, ऐसे कह के तो वो उसको निकाल देते हैं। वो भिखारी बेचारा आराम करता है बगीचे के अंदर एक नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उसने अपने एक कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर में झपकी लेने थोड़ी सी देर नींद लेने के लिए सोचा था। जैसे ही उसने वहाँ पे नींद लेने के लिए ऐसे अंगड़ाई ली, इतने में रवि उसको कहता है कि यहाँ से जाने के लिए। ये सुनकर उसको आश्चर्य हो जाता है कि ये मुझे ये क्यों कह रहा है कि यहाँ से चला जा। ये इसके घर का मालकिन से मिलना चाहा। तो चिड़ी हुई रुक्मणी भी रवि से कहता है कि रसोई घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है तथा और भिखारी यहाँ पे दोबारा ना आए, इसलिए उसे कह दो कि यहाँ से चले जाए। तो इतनी उसकी आवाज़ तेज़ थी कि रवि को वो शब्द भिखारी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, भिखारी को सब सुनाई दे गया था। और फिर वो कहता है कि मुझे इस जगह पर थोड़ा सा आराम करने दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बाहर बहुत तेज़ गर्मी है और पैरों में फफोले हो गए हैं। ये देखकर बच्चों को बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने एक जोड़ी चप्पल उनको उपहार में दी थी। He stretched out his feet to show large pink feeling blisters on the soles of his bare feet. I suppose he doesn't have the money to buy chappals, Mridu whispered to Meena and Ravi. Have you got any old pair in the house somewhere? I don't know, said Ravi. Mine are too small to his feet, or I did have given them to him, and his feet were larger than Mridu's and Meena's. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. तो वो जब उसको देखते हैं कि उसके पैरों में चप्पल नहीं है, तो वो ये और उसके पैरों में फाले हो चुके हैं, फफोले हो गए हैं, तो उनको ये लगा था कि उनको वो एक चप्पल की जोड़ी खरीद के उसको दे। मगर वो दोनों मृदु है ना, अपने आप में ये बोलता रहता है, उससे कहता रहता है। तो मीना और रवि को कहता है कि हमें कुछ करना चाहिए। तो वो ये मृदु पूछता है कि अपने घर पे कोई है क्या तुम्हारे जो चप्पल इसको दे सके। रवि कहते हैं मुझे नहीं पता, मगर मेरे तो पैर बहुत छोटे हैं, तो मेरी चप्पल उसको आएगी नहीं। तुम दोनों की जो मृदु और मीना की जो चप्पलें हैं वो उसकी चप्पल आ सकती है। बेचारा वो भिखारी वहाँ से उठने के लिए कपड़े को अपना समेटता है और देखता है और कहता है कि सड़क कितनी गर्म है, मैं यहाँ से कैसे जा सकूँगा। He knew something on his feet. Meena said, her big eyes filling. It's not fair. Shh, said Ravi. I am thinking about it. Blubbering, it's not fair isn't going to help. In 2 minutes, he will be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. Just as they stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him. Whose are those? Ravi turned and glanced at the shabby-looking but sturdy old slippers. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. जो वो उठने के लिए देखता है कि सड़क बहुत ही गर्म है, मैं यहाँ से बगैर कुछ पहने हुए मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरे पैर में फफोले हैं और भी हो जाएंगे, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसे चाहिए जो मैं अपने पैरों में चप्पल पहन सकूँ और मैं यहाँ से जा सकूँ। तो मीना भी कहती है कि हाँ, इसको कुछ पैरों में चाहिए। उसकी आंखें भर आती हैं और वो कहता है, इतने में रवि कहता है कि चुप,
देखते हैं, इसका कुछ ना कुछ उपाय निकालेंगे। 2 मिनट के अंदर में वो लोग जाके देखते हैं। वो कहता है कि 2 मिनट भी अगर ये सड़क पे चला ना तो इसके पैरों पे और फफोले हो जाएंगे, चलो हम इसके लिए कुछ करते हैं। वो मृदु और मीना को घर पे भेजता है और कहता है कि तुम लोग ढूंढो, कोई ना कोई चप्पल मिलेगी। तो जब वो लोग देखते हैं तो मृदु की नज़र जो है वो एक पुरानी चप्पलों पे पड़ती है, जो कि जब वो घर पे आती है तभी भी वो उस चप्पल को वहाँ पे देखती है कि वो एक भूरे रंग की चप्पल वहाँ पे पड़ी है। तो वो कहता है कि और ये भी चप्पल एकदम सही साइज की है जो उसके आ जाएगी, तो अपन उसको दे देते हैं। वो लोग वहाँ से उठा के लेके जाते हैं। He said to Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man, wear these and don't come back. The beggar started at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. In a minute, he had vanished around the corner of the street. The music master came out of the house and took an appreciative look at the three of them sitting quietly under the tree, playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. Lali, he called. After a few moments, she hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. Ravi, Mridu and Meena silently watched Lali and the music master search every corner of the veranda. She scrubbed around, looking over the railing and crouching near the floor pots to look between them. Brand new. They were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying, they cost a whole month's fees. Do you know? Soon Lali went into to tell her mother. Rukmani appeared looking harsh, with Pati following her. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door, worried Pati. Rukmani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then, seeing they were curiously quiet, went no more slowly. रवि ने वे चप्पल उठाकर उस भिखारी को दे दी थी और कहा था कि दोबारा यहाँ पे मत आना। भिखारी वो चप्पल पहनकर वहाँ से उन बच्चों को आशीर्वाद देता हुआ चला गया था। अब संगीत शिक्षक जाने के लिए घर से बाहर निकले तब वो अपनी चप्पल खोज रहे थे और उन्होंने लाली को बुलाया और उससे पूछा कि क्या तूने मेरी चप्पल देखी है? मैंने उसको यहीं पे ही खोली थी। तो वो लाली उन तीनों की तरफ में देखती है और कुछ वो कहती नहीं है। तो लाली कहती है कि ठीक है, मैं अपनी मम्मी को कहती हूँ। लाली रुक्मणी को बताती है कि भाई वो कि इन्होंने चप्पल यहाँ खोली थी, वो मिल नहीं रही है। तो उन्होंने बोला था कि बच्चों से पूछा कि क्या तुम लोगों ने किसी को यहाँ से चप्पल उठाते हुए देखा है? तो वो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं कहते हैं। तो रुक्मणी नाराज़ हो जाती है और वो उन तीनों की तरफ में देखती रहती है। तो वो बताती है कि लोगों ने संगीत शिक्षक की जो चप्पल है उस भिखारी को दे दी है। तो रुक्मणी अंदर जाती है और उसके लिए गोपू मामा के लिए जो नई चप्पल लेके आती है वो उस शिक्षक को दे देती है। वो शिक्षक कहते हैं कि मेरी चप्पल बहुत महंगी थी, मैं तो इसको कभी माउंट रोड से मैं इसको ख़रीद के लेके आया हूँ, बहुत महंगी चप्पल है मेरी। रुक्मणी इस चीज़ पे वो नाराज़ हो जाती है बच्चों पे। Soon anyone lurking around the veranda, a sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight, fitter one appeared in place of her as usually soft, pleasant mouth. Rukmani was angry, thought Midu with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with the sores on his feet, she tried to tell herself. Taking a deep breath, she cried, Rukmani, there was a beggar here, poor thing, he had such boils on his feet. So, said Rukmani grimly, turning to Ravi, you have the music master's chappals to that old beggar who turns up here. Children, these days I want Pati. Amma, didn't you tell me about
Karna, who gave away everything he had, even his gold earrings, and he was so kind and genius. Silly, snapped Rukmani. Karna didn't give away other people's things. He only gave away his own. But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet. Ravi rushed brassily, and Amma, if they did fit, would you really not have minded? Ravi said Rukmani, very angry now. Go inside this minute. She hurried indoors and brought out Gopu Mamma's hardly worn new chappals. These should fit you. Sir, please put this on. I am so sorry. My son has been very naughty. The music master's eyes lit up. He put them on, trying not to look up too happy. Well, suppose I will these will have. तो जैसे रुक्मणी आके वो बाहर आके वो नाराज़ होती है, उसको गुस्सा बहुत आता है उन बच्चों के ऊपर में, मगर वो उनको कुछ कहती नहीं है और वो उसको ये ज़रूर समझाती है कि भाई मतलब तुम लोग ये कोई कर्ण नहीं है कि जो तुम लोगों ने इसको दे दिया है। तो कहते हैं कि नहीं मैम, कर्ण तो बहुत ही दयालु था, वो अपनी हर चीज़ जो भी उसको मांगते थे वो उनको दे दिया करता था। तो रुक्मणी कहती है कि कर्ण देता था मगर वो अपनी चीज़ें देता था, वो दूसरों की चीज़ें नहीं देता था। रवि कहता है कि अगर रुक्मणी को कहता है These days, children have no respect for elders. What to do? A Hanuman incarnate, only Rama can save such a naughty fellow. Rukmani's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. When he had clattered off in his new chappals, he said, Bridhu, come in and save some tiffin. And have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? Thank God, your Gopu Mammas doesn't wear his chappals to work. As he walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? तो वो कहते हैं कि आजकल बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल भी बड़ों का मान सम्मान नहीं करते हैं। ये लोग तो ऐसी हरकतें करते हैं जैसे कि ये हनुमान करता है मगर बहुत ही वो अपने राम के लिए, कि वे ऐसी हरकतें वो करता था। पर रुक्मणी की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देती है और वो ये कहता है कि मतलब ये एक नटखट बंदर है। पर वो ये कहता है कि नहीं, वो अपने रवि के लिए एक नटखट बंदर भी वो सुनना नहीं पसंद कर रही थी। तो वो जल्दी से ना अंदर जाके और उसको कहती है कि तुम आओ इधर, और ये जो अच्छा हुआ कि नई चप्पल थी जो तुम्हारे पांडु मामा ने नहीं पहन रखी थी, तब मैंने उनको दे दिया, नहीं तो कितना गंदा लगता, ऐसे कह के। और वो अंदर जाके हंसती है कि सही में आज जितना हम नहीं सोचते हैं उतना ये लोग इसके बारे में सोचते हैं। और कहती है कि अंदर आ जाओ और थोड़ा नाश्ता कर लो। और उन्होंने भगवान का धन्यवाद भी दिया था कि अच्छा हुआ कि भाई जो चप्पल नहीं पहने तो आज उन मास्टर जी के लिए वो काम आ गई थी। इस तरह से घटना का आरोप अपने ऊपर लेने का फैसला किया था।